Hi guys, how are you all? Let's just wait for 5 minutes. Hello, I'm good, Junaid. How are you? Good evening to all. Let's just wait for 2-3 minutes, then we will start. Hi, Dishita. Will let you know the topic. Hi, Hey, Mohini. hi Rahul. Uh, Hi, how are you? good, good. How are you? I'm good. I'm good. Okay, fine. Then let's start. Okay, first of all, I would like to give you my introduction to all the FAB members and Advisor members. Okay, so here Mohini Maheshwari. I'm a moderator from FAB community, and today we have a guest who is Rahul Jain, and he is also a personal finance expert and he also runs a channel that is Dream Advisor as a content creator. Hi Rahul. Hey, hi, Mohini. Hello, friends. How are you, all of you? Okay, so first I would like to give you a brief introduction about Rahul. So he has more than 1.5 lakh followers over Instagram and Facebook. He has worked in the Yes Bank in program team as well as Ernest and Young as business advisory. And recently, 5 years back, he has set up his own financial advisory or distributor business and he managed the home of 100 plus crore. That is really a big amount of more in around or across 23 countries. Whoa. And recently he was also awarded with an Achievers Award. Congratulations, Rahul, a lot for that. Thank And you. and with that, our today's topic is we will try to learn something new, something good from Rahul related to tips, hack on financial advisory, or you can term as savings and anything. Okay, yes, Rahul, I would like to pass on to you. Will you like to share something about you, Uh, about your community and all? sure. So, I run the channel GR Finvisors, and the channel is dedicated to small financial hacks, finance, personal finance tips. How could you Yeah. invest? How could you achieve retirement, etc. So, I worked in a lot of corporates at ICICI Bank, at Yes Bank, at EY. वो सब छोड़ के I shifted to Udaipur in 2018 February. My parents were not keeping well, and when I Oh, came here, I saw a lot of misselling happening in this space, especially okay. the financial industry. The banks, a lot of banks were Okay. doing misselling. A lot of advisors did not have enough knowledge. So that is when I decided Hmm. to start the distribution business, help people understand what is financial planning, why is it important, what do you mean by FIRE? FIRE is financial independence and retire early. Somebody who is at a Okay. 25 years of age maybe probably wants not does not want to work throughout his life, probably wants to retire by 40 or 45. So how can he plan that? Yeah. So all those things are Yeah, very exactly. important, and that's where I started. And as you said, I currently manage AUM of around 100 plus crores across different 100 assets. crore plus, yeah. Yes, and the clients Yeah. are spread out across 23 countries. So it's been a good journey, a successful, happy journey, and yeah, so far so good. Nice, nice. So the main aim for our community was the same. That is, you can feel that कि इतने सारे articles होते हैं, blogs होते हैं. There are so much of newspapers and all. But उसके साथ में I feel as कि इतनी literacy भी बढ़ नहीं रही है. So just to bring that 1,000
words, 2000 words article into a small 60-second reel. So we have started with this channel. Just कि लोगों को ऑडियंस को एकदम इजीली एकदम आराम से खेलते खेलते मस्ती के फॉर्म में कुछ important news and all information pass on करें. Okay, so Rahul, I have few questions for you. So I will Sure. just ask you that, so that हमारे जो ऑडियंस है उन लोगों को कुछ ज्यादा न्यू बेटर लर्न करने मिलेगा. So related to that, first I will like to ask कि as आप चाइल्डहुड आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है, आपका बहुत अलग 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 जर्नी होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो उसी के साथ में मैं आपको ये पूछती हूँ, डू यू हैव एनी चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड टू मनी, anything which you want to share, and maybe a moment when you were learning about finance or saving. I don't know बचपन में कोई इतनी सेविंग बिल्कुल. करता है कि नहीं, ये So जनरेट लाइक पैसे मिले और उड़ा दिए. So actually, Mohini, you will be very surprised to know कि अधिकतर लोग बड़े होने के बाद गोल प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम सब ने इनडायरेक्टली या अननोइंगली बचपन से ही गोल प्लानिंग सीखी है. और उसका बहुत सिंपल एग्जांपल है गुल्लक, जो पिगी बैंक होता था. हाँ हाँ, बचपन में हमको पिंक रियलाइज कलर नहीं का होता. छोटा सा. बिल्कुल, हमको रियलाइज नहीं होता था कि पिगी बैंक जो है उसमें हम लोग पैसा डाल के सेव कर रहे हैं साइकिल के लिए, चॉकलेट्स के लिए, या कोई भी टॉय के लिए. पैसा मिलता, सेव कर अभी लेते थे. गर्मी आज चल वो रही नहीं है. करते. बड़े हो जाते हैं, सैलरी मिलने लगती है, फर्स्ट सैलरी आई, उड़ा दी कि अभी तो बहुत टाइम है खर्चा करने के लिए, क्या करना सेविंग करके. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ मेमोरी है मेरे लिए कि यार छोटे छोटे चॉकलेट्स के लिए 10 रुपए की चॉकलेट भी लेनी है अगर, तो हम उसके लिए भी 1-1 रुपया करके 10 दिन तक या 20 दिन तक सेव करते थे. या बर्थडे पे जो गिफ्ट आया उसको पिगी बैंक में डाला कि साइकिल खरीदेंगे. तो आई थिंक बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है उन लोगों में भी बहुत सारे लोगों के साथ ये रहा होगा कि सबने पिगी बैंक में सेव या किया, अलग अलग तरीके से सेविंग करी. और आज शायद हम लोग को लगता है कि हम गोल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. नहीं है, बहुत सिंपल चीज है. गोल डिसाइड करो, टारगेट डिसाइड करो, कितने साल में अचीव करना है. इट कैन बी एज गुड एज अ कार, घर, एज स्मॉल एज से लैपटॉप और मोबाइल भी लेना है. दैट वो भी आपका एक गोल है. तो उसके लिए आपको प्लानिंग अभी से करनी होगी, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली, मुझे खुद का आप बोले तो मुझे भी याद हो गया. मतलब व्हेन आई वाज स्मॉल, स्कूल के टाइम्स में थे तो ऐसे 5 रुपीज का कॉइन लेके जाते थे, या फिर उसको सेव करते थे. किसके लिए सेव करते थे? चॉकलेट के लिए. या फिर स्कूल में ब्रेक होगी तो बाहर जाके कोई चिप्स का पैकेट ले, क्योंकि पेरेंट्स डेली 10-10, 20 रुपीज तो देंगे नहीं आपको चिप्स के पैकेट के लिए, तब आपको सेव करना पड़ता था. तो अब जाके ये चीज मुझे रियलाइज हो रही है कि हम सेविंग अभी नहीं कर रहे, हम सेविंग उस टाइम से करते थे, और हमारा एक छोटा सा गोल होता था कि हमें चॉकलेट लेनी है, तो चॉकलेट के लिए हम सेविंग करते थे. अब हमारे तो हम बड़े हो गए, हमारे गोल्स बड़े होने लग गए. नाइस नाइस, आई अभी टोटली जो एग्री आपने ऑन बोली दिस. नहीं, अभी जो आपने एक चीज बोली कि पापा मम्मी रोज तो पैसा नहीं देंगे, राइट. या और वो चीज उस टाइम पे भी ये होती थी कि रोज तो अपन ये आज ये सोच है कि भाई सैलरी तो मिल ही रही है, बट यू नेवर नो. इमरजेंसी फंड हम लोग नहीं रखते हैं, बहुत जने नहीं रखते हैं. आज सैलरी मिल रही है, कल को कुछ भी फॉर एनी अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंस, कोविड आया था या ग्लोबल रिसेशन आया, किसी भी कोविड. कारण से, राइट, अगर आपकी सैलरी चली गई, जॉब चली गई, और आपको 6 महीने बिना जॉब के निकालने पड़े, इट विल बी वेरी पेनफुल अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा. बचपन में एक एग्जैक्टली सेफ्टी नेट एग्जैक्टली. थी अपने पास, फैमिलीज. बट नाउ अगर आप कमाने लग जाते हो, योर सेफ्टी नेट इज योर सेल्फ. यू इवन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोबेबली योर वाइफ, किड्स, और इवन पेरेंट, राइट. तो ये एक बहुत एग्जैक्टली. इंपॉर्टेंट, एज यू सेड, ध्यान रखने वाली चीज है. और बचपन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमने सीखा है लेकिन हम भूल जाते हाँ हाँ एग्जैक्टली, जिसमें बोल रही हूँ ना, अभी आपने बोला तो मुझे याद आया, मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि हाँ मैं भी तो पैसे सेव करती थी फॉर चॉकलेट्स और फॉर अच्छी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप और कलरिंग पेन्स के लिए, एंड बाकी जो बड़े एक्सपेंस होते थे डेफिनेटली पेरेंट्स करते थे, पर फिर भी हम हमारी छोटी छोटी सेविंग्स करते थे. नाइस नाइस. सो विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज, do you have any specific moment or event in your family background that sparks your interest in finance, कि आपको एक बार लगा कि हाँ finance में जाना चाहिए? Any story, any experience related to that? हैं. देखो, एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो मेरी पूरी फैमिली, लाइक मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, सब लोग बिजनेस में हैं. एंड एज अ कम्युनिटी Okay. इटसेल्फ हम बोलते हैं कि सब बिजनेस में है, सब नंबर्स में, सब लोगों को मजा आता था नंबर्स के साथ. बचपन से वो चीज देखती है कि किस तरह से शॉप पे या ऑफिस में बैठना है, किस तरह से लेन देन होता है. सो दैट हैज ऑलवेज Okay. स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट इन फाइनेंस, एंड माई MBA वाज इन Okay. फाइनेंस. सो ऑफ कोर्स वो नंबर्स में, पैसे में जब मजा आने लगता है तो अपने आप ही आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है. एंड फिर जब देखा ना कि कुछ भी चीज आपको करनी है, फॉरेन जाना है, कुछ खरीदना है, सबके लिए पैसा चाहिए,
राइट। ट्रू, और अभी अगर पैसे भी अपना तो कुछ नहीं पैसा, होने वाला आज के यस, टाइम। और पैसा अपना हो तो और भी अच्छा है, पेरेंट्स से किसी से ना लेना पड़े जब उस कमाने लगते हो। ट्रू। सो वो चीजें जब रियलाइज करी तो रियलाइज हुआ कि यार हाँ, फाइनेंस में इंटरेस्ट है और इसके बारे में समझना चाहिए। पहली मेरी जॉब भी वेल्थ मैनेजमेंट में थी, तो तब से यही चीज करता आ रहा हूँ। सो इट इट हैज बीन रियली इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी जर्नी। एंड अगर आप किसी भी क्लाइंट को ओके। हेल्प कर देते हो या अपने फ्रेंड को हेल्प कर देते हो उसका गोल अचीव करने में सही गाइडेंस से, और हम्म। जब वो बोलता है कि यार थैंक यू, तूने मेरा ये गोल अचीव करवा दिया, दैट इज अ वेरी हैप्पी फेस। बहुत अच्छा लगता है कि यार व्हाई नॉट, इतनी अच्छी चीज करी है हमने। या ट्रू। तो इसी बात से मैं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछना चाहूंगी कि आपका कैसे एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, कब आपको स्ट्राइक हुआ, मतलब इट्स लाइक कैसा होता है, मतलब व्हाट आई हैव सीन, मैं आपको बताती हूँ कि अगर अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो पेरेंट्स आर लाइक, सोसाइटी आर लाइक कि आपको साइंस में जाना चाहिए, पर एट दैट टाइम आपको बहुत माइंड बनाना पड़ता है, नहीं नहीं मुझे साइंस में नहीं, मुझे कॉमर्स में जाना है। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी, परसेंटेज काफी अच्छे थे बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे इतना पढ़ना नहीं है कि मैं साइंस में जाऊं। So I was कि आपका education background, आपका qualification and also we want to know something related to that. So I did my BTech from Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar. So yes, नंबर्स अच्छे थे। Okay. 10th के बाद साइंस लिया, साइंस में इंटरेस्ट भी था Same. और मजा आता था। Okay. बायो में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने बायो नहीं लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था। Okay. फिर 11th 12th आई वाज इन Okay. कोटा, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, देन आई जॉइन DIICT। उसके बाद मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करिए साथ में, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, लेट मी ऑल्सो एड हम्म। नंबर्स, एंड जनरली इंजीनियर्स को भी नंबर्स में मजा आता है। So अच्छा yeah, अच्छा। because of the finance thing, I did my MBA in finance from NMIMS Mumbai, Narsi Munji, Okay, nice. and Yeah. yeah, and then I went into my corporate life from there. So अच्छा था, Okay. interesting था, great journey. I have very good memories of my college and both colleges actually. So Okay. कॉलेज लाइफ एंड इंजीनियरिंग लाइफ एक अलग ही होती है सबकी, जनरली विच आई हैव हर्ड। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। डिड यू हैव एनी एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग हैबिट्स इन योर यंगर डेज, जो जनरली सबकी होती है, किसी की होती है कि आए तो खर्च कर दिया, कोई तो नहीं नहीं मैं तो सेव करके रखूं, मैं किसी को 1 रुपए भी नहीं देने वाला मेरा। व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल और अनयूजुअल परचेज यू हैव मेड दैट यू कैन लुक बैक और नाउ एंड लाफ ऑन? so अगर आप ये पूछो कि एक्स्ट्रावेगेंट हैबिट्स नहीं थे, बट वेन यू आर यंग यू गेट इजीली ल्योर्ड इनटू थिंग्स यू डोंट वांट टू बाय। लेकिन होता है ना, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है तो उसने आपको सेल कर दिया। So what happened या। was there was a MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम जो होता है एजुकेशन के नाम पे। आई थिंक इट वाज इन 2007 और 2008, लाइक 15 years ago। ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज में था, किसी ने बोला कि इतना कर लो इन्वेस्ट, बहुत अच्छा है, अच्छा है, इतना जर्नी है। देन दे शोड अ लेविश लाइफस्टाइल कि वो लोग जो कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो गया है। तो वो देख के आई गॉट एक्साइटेड कि मुझे करना चाहिए। मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाके खरीद लिया था वो कोर्स एंड ऑल, और फिर रियलाइज हुआ कि दैट वाज अच्छा नॉट फॉर ओके। मी, क्योंकि आई वाज अ ओके कंप्यूटर ओके। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, एंड दे वर गिविंग मी बेसिक कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स। सो आई स्पेंड सम ओके सेवन ओके एंड हाफ फाइन। थाउजेंड उस टाइम पे बड़ी चीज होती थी, आज बड़ी चीज नहीं होती है, बट 7,000 7,500 रुपए खर्च एग्जैक्टली। किए थे। एंड दैट वाज अ लर्निंग। पेरेंट्स ने मना भी नहीं किया था, बट दे टोल्ड मी कि ठीक है, तेरी इच्छा है एक्सपीरियंस करना है, ट्राई कर ले। सो यस। हाँ यही है, पियर के प्रेशर में आके बोलो या फिर उनसे एकदम इजीली कन्विंस होके बोलो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए थी पर वो भी कर लेते हैं, फिर हम कहते ठीक है चल कोई बात नहीं हो गया। ओके, so next, many people dream of being financial advisor. But what were the turning point that made your decision to pursue this profession? This we already generally talked about that. But a simple just I want to, मतलब I want from your side, जैसे कि आप बोल रहे हो आपने बीटेक किया, तो बीटेक के बाद में आप फाइनेंस में, इज दैट कि आपका 11th 12th में या कॉलेज में आपका माइंडसेट हो ही चुका था कि नहीं नहीं मुझे तो फाइनेंस में ही जाना है, और समथिंग एल्स हैपेंड विद यू कि जिसके वजह से आपने फाइनेंस लिया, बिकॉज आई गेस बीटेक के बाद ये कॉर्पोरेट लाइफ में जाके अलग अलग प्रोसेस एंड ऑल यू कैन ऑप्ट दैट एज वेल। सो तो हुआ ये था कि ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज आई सॉ पीपल हु वर गेटिंग प्लेस्ड, किस तरह का जॉब कर रहे हैं, और कोडिंग में मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। डिसेंट इंटरेस्ट ओके। था, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं था, बट बहुत ज्यादा भी नहीं था।
एंड मेरा मोर इंटरेस्ट था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मैनेजमेंट साइड या बिजनेस साइड में इंटरेस्ट था. सो दैट इज वाई आई डिड माई एमबीए. एमबीए में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, सेकंड ईयर में यू गेट अ चॉइस. सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते आई रियलाइज दैट मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है. आई एम मोर ऑफ अ फाइनेंस पर्सन. आई लाइक नंबर्स, costing, solving equations, understanding cases and getting solutions for those. So number based solution is something जिस पे मैंने फोकस किया. मैं सेल्स मार्केटिंग मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सेकेंड ईयर में फाइनेंस लिया. तो दैट हैज हेल्प एक्चुअली. और उस टाइम इंटर्नशिप वाज विद आईसीआईसीआई वेल्थ मैनेजमेंट में, हेड ऑफिस में था आईसीआईसीआई के. बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे. उस टाइम जो मेरे सुपर बॉस थे आज वो एक बड़ी कंपनी, टाटा कंपनी के सीईओ हैं. सो वो सीखने को मिला. यस. उसके बाद यस बैंक था. दैट वाज अगेन अ डे जीरो प्लेसमेंट. और यस बैंक उस टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड बैंक्स टू गेट अ जॉब इन. So I got a job in wealth management there. उसके बाद I was in the program team, not on the sales side. So we used to design programs, customer value proposition क्या होना चाहिए, वो सब हम लोग create करते थे. And that is where this experience comes into, manage clients, किसको क्या recommend करना है, what is good. So उस तरह से हमने किया. Okay, एक question है यहाँ पे. Which university is best for distance MBA? बिल्कुल. तो डिस्टेंस एमबीए के लिए देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, बट डिपेंड इस पे करता है कि आपको किस सेगमेंट में करना है. आपको एचआर में करना है, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है, ऑपरेशंस में करना है. उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसके हिसाब से यू आइडेंटिफाई कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से एमबीए तो करना है, लेकिन आपको किस फील्ड में करना है, कहाँ ग्रो करना है, उसके ऊपर सब चीज डिपेंड करती है. उसमें भी ये चीज है कि आपको अगर सिर्फ फैमिली बिजनेस वाले सेगमेंट में करना है, अपना फैमिली बिजनेस है वो ग्रो करने के लिए एमबीए करना है या जॉब के लिए करना है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे कॉलेजेस हैं. एनएमआईएमएस भी प्रोवाइड करता है. देयर इज मणिपाल, देयर इज निर्मा, देयर आर लॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स. एसपी जैन है. इवन आईआईएम्स हैव स्टार्टेड सम डिप्लोमा कोर्सेज देयर. या आई नो उन लोग ने स्टार्ट किया है डिप्लोमा कोर्सेज. ओके फाइन. तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके सो ये चीज हमने सुनी है कि सबके पीछे, मतलब हर आदमी के पीछे बोलो किसी के वजह किसी ना किसी का हाथ तो होता ही है. सो आई विल लाइक टू आस्क अबाउट योर चडी बडी और योर फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, समवन जो आपके लाइफ में इतना स्पेशल हो एज आपका फ्रेंड, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड, जिसने आपको ऊपर चढ़ाया भी और साथ में किसी किसी बात पे नीचे खींच भी लिया कि नहीं नहीं ये मत कर. और कभी नहीं नहीं बहुत वो बोलते हैं ना कि बहुत नीचे से पिन किया, कर ले हो जाएगा हो जाएगा. तो एनी फ्रेंड और एनी स्टोरी विच यू वांट टू शेयर? सो इसमें सी द फर्स्ट जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स द फर्स्ट नेम आई वुड लाइक टू से फ्रेंड भी है, मॉम भी है. शी इज माय मॉम. शी हैज ऑलवेज पुश्ड मी, सपोर्टेड मी. डांट भी खाई है, मार भी खाई है, पढ़ाई भी करी है और प्यार भी देखा है. सो मम्मी के साथ सबसे ज्यादा था. एंड आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज इन मुंबई, और जब मेरा डिसीजन था उदयपुर शिफ्ट होने का, इट वाज अ बिग डिसीजन बिकॉज मैं बहुत साल वहां पे था, ऑलमोस्ट 8 years एक्चुअली. तो मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट था कि ठीक है आपकी इच्छा है और पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं, तो लेट्स मूव बैक. एंड लास्टली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, देयर आर मल्टीपल 2 or 3 close friends, but one which has been through with me in BTech, in MBA and during job has been Ankit. That is my friend Ankit Kothari. So he has been through there. दोस्ती भी है, गालियां भी खाई है और सपोर्ट भी मिला है. We got internship on the same day, we got placements on the same day, different companies, but yeah, great experience. तो दोनों साथ में बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस. एंड yes, इन 3 नाम के लिए, and my dad of course. So वो जताते नहीं है, but I feel that he वो हमेशा फैमिली की बैकबोन, या वो हमेशा फैमिली का सबसे बैकबोन होता है. यस बिल्कुल. इनफिक फाइनेंस आपको अभी मैंने आंसर किया था कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट में आपको एमबीए करना है और किस पर्पस के लिए करना है. फैमिली बिजनेस को ग्रो करने के लिए करना है या आपको जॉब के लिए करना है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा. मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं. बेस्ट किसी को भी नहीं बोलता मैं. अगर मेरे को बोलोगे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, IIM, ABC तीनों अच्छे हैं. DY पाटिल इज ऑल्सो गुड. सो यू कैन चूज कि वहाँ का कैसा है फैकल्टी. लेटेस्ट अभी चेक करना पड़ेगा, बट मैम कैन आंसर बेटर इफ शी वांट्स टू. नो इट्स ओके.
Okay, it's really very important to check about the faculty as well as the course कि वो actually क्या course में कौन से subjects है वो लोग offer कर रहे हैं, and what are the duration, because I have seen that कि duration बोल मतलब every sem में भी subjects change होते हैं, yearly subject change होते हैं, तो क्या duration कितने duration में वो लोग क्या offer कर रहे हैं, and definitely the background of the college, क्योंकि college का background आपके खुद के personal growth के लिए बहुत ज्यादा affect करता है. Fine. Okay. So next move to little bit hack, or we can term as key qualities or skills to you believe that मतलब एक प्रोफेशनल होने के लिए या फाइनेंस पर्सन होने के लिए की क्वालिटीज जो हर एक चीज में हर एक प्रोफेशन में इम्पोर्टेंट है, मतलब जस्ट 2 or 3 थिंग या ऐसी कुछ आप बताना चाहोगे कि ये चीज आपकी है ना, आपने क्रैक कर गए. तो पहली समथिंग लाइक चीज है, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज. और अगर दैट. नॉलेज नहीं है तो योर डेडिकेशन टू गेन दैट नॉलेज, राइट. अगर आप, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे तो ये नहीं आता है. नहीं आता है तो सीख सकते हो, दूसरे ने भी सीखा है. लेकिन अगर आप सोच लो नहीं आता है और मैं ये नहीं करूंगा, देन इट डज नॉट मेक सेंस. दूसरी है हार्डवर्क. वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे किसी भी फील्ड में, अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी, इफ यू वांट टू ग्रो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से, वेरी इंपॉर्टेंट, इज फोकस. यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, जिसमें आपके 8 से 10 घंटे ट्रैवलिंग में, रेस्ट, सोने में, खाने में चले जाएंगे. सो यू हैव 10 to 14 आवर्स एवरी डे. अब वो आपके चॉइस है कि आप उसको किस तरह यूज करते हो. यू हैव टू प्रॉपरली बैलेंस कि मुझे इतना टाइम काम को देना है, और जब मैं काम करूंगा तब फोकस्ड अप्रोच के साथ सिर्फ काम करूंगा. इट कैन बी एनीथिंग. काम हो सकता है कि आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो फाइनेंशियल, दैट इज ऑल्सो वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ. फिर आप अपने को, फैमिली को कितना टाइम देते हो, यू हैव, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी स्ट्राइक करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सारा टाइम फैमिली को दे रहे हो और सारा टाइम काम को दे रहे हो, दोनों गलत है, राइट. तो वो बैलेंस करना, these qualities are important. And lastly, time management is very important. As I said, जब आप फोकस्ड अप्रोच से काम कर रहे हो, साथ में अगर टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम. एक्चुअली आज के टाइम में यही कंप्लेंट हो गई है सबकी, या तो वर्क आवर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए फैमिली को टाइम नहीं मिलता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे तो वर्क रह जाता है. इनफैक्ट आई हैव हर्ड दिस ऑल्सो कि ऐसा लगता है कि अब तो दिन छोटा पड़ रहा है, अब दिन बड़ा करना सकते कि और कर सकते हैं दिन में, पर कुछ नहीं, अब खत्म हो गया, दिन ही खत्म हो गया. इट्स लाइक कि कहाँ सुबह हुई कहाँ शाम हुई, काम क्या किया समझ में ही नहीं आता. तो सबसे बड़ी चीज वही होता है, व्हेन डू यू डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट, आप कौन से स्लॉट में क्या काम कर रहे हो. आई गेस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सो थिंग. इसमें एक चीज है, लोग बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो ये सब कर रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम सबके पास 24 घंटे ही है. जो जितने ऑडियंस देख रही है उन सबके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी है और मेरे पास भी है, राइट. बट द पॉइंट इज हाउ यू यूटिलाइज दोस 24 आवर्स, वो आपके ऊपर है. अगर आप ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो 24 घंटे कम लगेंगे, और अच्छे से यूटिलाइज करोगे, प्लान करोगे, तो लगेगा बहुत टाइम है, अभी तो फैमिली को भी टाइम दे सकता हूँ, घूमने भी जा सकता हूँ. 24 से 48 घंटे हो जाएंगे कि आज तो बहुत कर लिया, आज तो दिल खुश हो गया. एब्सोल्युटली. ट्रू. ओके. Yeah. So next, some common financial challenges that individual or families face, and how do you help them navigate through this situation? As आपके पास बहुत सारे clients आते होंगे, definitely उन सबकी अलग अलग stories होती होगी, अलग अलग things, अलग अलग चीज होती होगी. So anything? सो कपल ऑफ की एस्पेक्ट्स इसमें यह है कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है कि दे डू नॉट प्लान, एंड व्हेन दे रियलाइज बहुत लेट हो चुका होता है. एज आई सेड, यू शुड स्टार्ट इन योर अर्ली 20s और मिड 20s, राइट, सो दैट बाय द एज ऑफ 35 यू ऑलरेडी हैव अ सिग्निफिकेंट कॉर्पस. और बहुत सबकी सैलरीज आजकल अच्छी खासी है. मैं बोलता हूँ अगर 10,000 रुपये महीना भी कोई चालू करता है, और अगर लास्ट 10 साल की बात करूं तो रिटर्न्स हैव बीन, सेंसेक्स ने लगभग 14 से 15% का रिटर्न दिया है. अगर आपका अंडर परफॉर्मिंग 12% का भी रिटर्न दिया, तब भी आपके पास 20 से 25 लाख रुपए के आसपास 10 साल में होंगे बाय द एज ऑफ 35. दिस आई एम सेइंग, बिना आपका इंक्रीमेंट के, स्टेप अप आपने नहीं किया, हर साल इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाया नहीं. सो दैट इज वन प्रॉब्लम. इसका सॉल्यूशन है कि आपको जल्दी स्टार्ट करना है, बट जो ऑलरेडी लेट हो चुका है वो, उसके लिए ये एडवाइस होती है कि आप और लेट मत करो. यू आर ऑलरेडी 40. अब इस चक्कर में मत करो कि मैंने 25 में क्यों नहीं स्टार्ट किया. स्टार्ट एट 40 एटलीस्ट, वरना आपका अगला 5 साल ये सोचते हुए निकल जाएगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया, कर देता तो ये हो जाता. पहला वो है, तो फिक्स है सबका. करेक्ट. दूसरा है, बहुत लोगों का एम होता है, यू नो, अपना जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग होता है,
बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए, 25% रिटर्न चाहिए, राइट? देयर इज सम मनी दैट यू कैन प्ले अलोंग विद इट, जो आप हाई रिस्क पे करोगे, स्टॉक्स में डालोगे, एफएनओ में डालोगे, बट ये भी मान के चलिए कि उसमें रिस्क है कैपिटल लूज करने का। उतना हाई रिस्क पे अगर आप जा रहे हो, आपका पैसा डूब भी सकता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको प्रॉपरली प्लान करो। अगर शॉर्ट टर्म में आपका 1 साल का कोई गोल है, बहुत लोग सोचते हैं इक्विटी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, नहीं डालना चाहिए। पुट इट इनटू एफडी, क्योंकि 1 साल में आपको नहीं पता है मार्केट कैसे बिहेव करेगा, राइट? हर बार बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो अगर आप मार्केट रिस्क को नहीं समझ रहे हो और शॉर्ट टर्म में वो प्रिंसिपल डाल रहे हो, 2020 में मार्केट 40% गिर गया विद इन 2 months। इट वॉज 42,200 प्लस सेंसेक्स ऑन 20th जनवरी, और 23rd मार्च को 26,000 से नीचे आ गया था। सो अब 40% से ज्यादा गिरा था। तो अगर किसी आदमी ने टारगेट किया भाई मुझे 3 महीने में पैसा चाहिए, लेकिन मैं इक्विटी में डाल देता हूँ, उसका 10 लाख का वैल्यू 6 लाख से भी कम हो गया था। तो वो नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल कितना दूर है, उसके लिए आप कितनी रिस्क ले सकते हो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि मुझे किस एसेट में कितना डालना है पैसा। और अगर लॉन्ग टर्म गोल भी है, राइट, तो भी जैसा इनिशियली हमने कॉल के स्टार्टिंग में बात किया, इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का खर्चा आपके पास सेविंग्स या लिक्विड मनी एफडी में भी डाल दो। लिक्विडिटी होनी चाहिए कि कभी भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो पैसा आप निकाल सको, अपने डेली एक्सपेंस के लिए यूज कर सको। उसके लिए आपको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नहीं छेड़ना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंश्योरेंस। लोग इंश्योरेंस में से रिटर्न ढूंढते हैं, नहीं, इन्वेस्टमेंट इज सेपरेट, इंश्योरेंस इज सेपरेट। मैं जनरली बोलता हूं कि अगर आपको टर्म प्लान लेना है या लाइफ इंश्योरेंस लेना है, प्योर टर्म प्लान लो, उसके साथ आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ये सब मत करो, क्योंकि यू विल एंड अप लूजिंग मनी। दैट इज माय व्यू। और एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरा 50 लाख प्लस का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, 60 लाख एक्चुअली। उसका रीजन ये है कि कभी भी 10-20 लाख 30 लाख का खर्चा आ गया, और आजकल मेडिकल बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, ऑल द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सब एक्सपेंसिव है। तो उनको कवर अप करने के लिए हमारे पास हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। कितना खर्चा होगा? अगर यंग एज है, 10 से 20,000 रुपए साल का खर्चा होगा, मतलब 1,000-1,500 रुपए, जो आप एक डिनर करने जाते हो उससे भी सस्ता है महीने का। उतना अपनी फैमिली के लिए समझ लो खर्चा कर दिया। भगवान करे कभी जरूरत ही ना पड़े क्लेम लेने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो आपका सारा लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो हिल जाएगा। सो उसको सही रखने के लिए आपको हमेशा प्रॉपरली चलना चाहिए कि मेरा इंश्योरेंस कवर्ड है, मेरा इन्वेस्टमेंट कवर्ड है, मेरा जो इमरजेंसी फंड है दैट इज टेकन केयर ऑफ। उसके बाद जो बच रहा है उससे मैं घूमने फिरने वेकेशन उसके लिए भी प्लान कर रहा हूँ। वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेरी अलग से चल रही है। वो लोगों की प्लानिंग नहीं होती, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट, बट इंडिया की बोलो कि यहाँ के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और इन सब की बात करो, यही सबसे बड़ी चीज है कि उन लोग को प्लानिंग नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक घर तक बात पहुंचनी ही चाहिए कि आपको कब का, इनफैक्ट एक छोटे से बच्चे से लेके कि आज के टाइम में ऐसा भी हो गया कि बहुत यंग एज से बच्चे अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज इतने गैजेट्स आ गए हैं आपके पास में, इतनी अलग अलग प्लेसेस पे आप जा सकते हो, वर्क कर सकते हो, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए। सिर्फ घर पे बैठ बैठ के आप काम कर सकते हो, इतने सारे टाइप के वर्क कर सकते हो। तो पैसे मिलना चालू है, पर वही चीज है कि उन लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अभी तो पेरेंट्स है उनका बैकबोन बन के, पर कब कहाँ कल क्या हो जाए वी डोंट नो एनीथिंग। सो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं। तो इसमें मोहिनी ये होता है कि फॉर माय क्लाइंट्स जिनका मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, बहुत जगह एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स ये करते हैं कि आपको कितना पैसा डालना है, आपको 10 लाख रुपए डालने, ठीक है लाओ डाल देते हैं। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज लोग ये नहीं समझते कि 10 लाख के लिए सामने वाले ने ना गोल पूछा है ना रिस्क पूछी है। 10 लाख रुपए आप एफडी में डाल सकते हो, सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, स्टॉक्स में डाल सकते हो, फ्यूचर्स ऑप्शन में डाल सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हो, प्राइवेट इक्विटी में डाल सकते हो, बड़ा अमाउंट है तो पीवीसी में भी डाल सकते हो। रिस्क बढ़ती जाती है, इवन म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग रिस्क की। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कितना रिस्क ले रहे हो आप, कितने टाइम पीरियड के लिए और क्या पर्पज है। तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, बिकॉज लोग घबराते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने से, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इजी चीज है। बेसिक चीज समझो कि आपका कैश फ्लो कितना है, आपका करंट एसेट्स कितने हैं और आपका गोल क्या है, और गोल कितने साल बाद है, राइट? सो जस्ट एक फ्यूचर प्लानिंग हम लोग
अपना भी करते हैं कि अगर आज मैं एफडी कराऊंगा 8% की, 3 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, राइट? तो द कैलकुलेशन इज सेम कि मुझे 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो आज मेरे को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वेरी सिंपल। और ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, सिप प्लानर्स एंड ऑल। सो ये चीज बहुत सब इंपॉर्टेंट है। सब अब तो नाउ तो ईच एंड एवरीथिंग इज सो इजी कि आप घर पे एक कॉर्नर पे बैठे बैठे आप सब चीज एक्सेस कर सकते हो। आप कोई भी Absolutely. कैलकुलेटर बोलो, कोई भी चीज बोलो, कहीं इन्वेस्ट करना बोलो, बैंक अकाउंट ओपन करना बोलो, इट्स लाइक सिटिंग एट सिंगल प्लेस, यू कैन डू मल्टीपल Yes. थिंग्स। पर वही है, नॉलेज रिलेटेड टू दैट थिंग वो नहीं है वो नहीं। यहाँ पे। ओके, सो इसी के साथ में आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे आप अपने क्लाइंट्स के बारे में बता रहे हो, तो डू यू वांट टू शेयर एनी सक्सेस स्टोरी ऑफ द क्लाइंट जो आपके पास आया और आपने उनको इतनी अच्छी से एक्सप्लेन किया कि ही इज रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि अगर आपने नहीं बताया होगा तो मेरा इतना लॉस हो जाता, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी स्टोरी विच यू विल लाइक टू शेयर? So there are a few stories. So luckily I haven't had dropouts from clients. So that is the good part ओके, about it. But one of the stories एग्जैक्टली। was clients को ये नहीं पता था. A lot of people were putting money into FDs. But वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में थे, 35%, 30% प्लस टैक्स स्लैब में थे। सो उन केसेस में पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो उनको नहीं पता था। अब कुछ क्लाइंट्स ने इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के लिए डेट फंड में 2018 में डाला। आफ्टर 3 years ओके, hello, yeah, their या return close to 7.5-8%। बट उसमें इंडेक्सेशन मिलने के बाद अगर वो 8% की एफडी करवाते तो उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न बैठता लगभग 5.5%, 30% टैक्स लगने के बाद। और वही 8% डेट फंड में अगर आया, उनका बेनिफिट हुआ बिकॉज उनका इंडेक्सेशन के बाद 20% लगने के बाद 7% के आसपास पोस्ट टैक्स रिटर्न बैठा। सो दे वर प्रीटी हैप्पी, इट वाज अ बिग चंक। एंड उन्होंने या कंपनी के नाम पे इन्वेस्ट किया था। सो कंपनी को करंट अकाउंट में जनरली कुछ मिलता नहीं है, राइट? दे पुट एफडीज, एफडीज भी बहुत ज्यादा रेट नहीं थे उस टाइम पे। एक वो था। दूसरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक क्लाइंट को गाड़ी खरीदनी थी। सो ही वांटेड टू बाय ओके, अ गुड कार इन से 3 years टाइम, 3 to 4 years मेरे को लेना है, राइट? बट लकीली 4 साल की जगह उसका 2.5 से 3 साल के बीच में ही हैड इनफ पर्पस कि वो डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले पाएगा। सो वो प्लान किया, ही कुड अचीव। एंड थर्ड एक्सपीरियंस वाज अभी रिसेंट की बात है। दिस गाय स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2019। ही स्टार्टेड पुटिंग इन रेगुलरली जब भी उसको बोला। एंड ओवर टाइम उसको घर लेना था, उसका गोल था मुझे घर खरीदना है। सो ही टुक अ 2 घर, crore हाँ, फ्लैट इन दिस इज पुणे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गोल सेट किए, जस्ट नहीं कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, देखते हैं रखते हैं अभी। तो उसका एम था कि यार मैं जो भी घर लूंगा 10 से 20%, तो मुझे 20% के आसपास डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। सो उन्होंने घर लिया अभी पुणे में 2 करोड़ का। उन्होंने 40 लाख का डाउन पेमेंट जो उसका इन्वेस्टमेंट था उस पोर्शन से कर दिया। So he is pretty happy, and I am also happy he has achieved his goal. So yes, that's the good part. Okay, so here one more question we have. Will artificial intelligence impact the financial industry corporate job? Actually ये तो देख रहा है, it's not about the corporate, पर काफी अलग jobs में तो है ऐसा कि इफेक्ट कर ही रहा है, because अब आप AI tools बोले, इतने सारे AI tools आ गए हैं। So what do you have anything for So financial industry? I think AI will not impact finance corporate jobs, but it will supplement them. AI helps. Oh, ठीक है, हो सकता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एआई कैन नॉट रिप्लेस यू, राइट? yeah, as a हमने substitute वो help कर सकते हैं। हाँ, ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड एआई, एआई हैज नॉट क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, राइट? True. तो हमने कुछ चीज को क्रिएट किया है और वो अगर हमको रिप्लेस करने लग जाए, देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस। शायद हमने ढंग से सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि एआई इज एन एल्गोरिथम, वो बॉट है जो हमसे ही सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग। Yeah, अब हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपना स्किल सेट अपग्रेड नहीं करेंगे, हमको जो आता है दैट इज सफिशिएंट, देन ऑफ कोर्स एआई विल रिप्लेस यू, बिकॉज वो रेगुलरली yeah. अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। सो कंसिडर इट एज अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अ पीयर। आपका एक कलीग ही है जो कर रहा है वैसा। हाँ, जो आपसे compete कर और आप अपने आप को रेस में आगे रखने की ट्राई कर रहे हो। बिल्कुल। Totally. एक क्वेश्चन और आया है, और आई थिंक हितेश, क्या? वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज एसआईपी और इज गुड और एफडी इन बैंक या पोस्ट ऑफिस? So, it is the Yeah. point here is, one-time investment in FDs is a very safe investment.
व्हेन यू आर गोइंग फॉर SIPs यू हैव टू अंडरस्टैंड इक्विटी में डाल रहे हो, डेट में डाल रहे हो या हाइब्रिड फंड में डाल रहे हो, आप उतने अगर रिस्क लेना चाहते हो। और मैं सिंपल चीज पूछता हूँ, दोनों चीज क्यों नहीं कर सकते? अलग अलग क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपके पास लमसम पैसा है और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, FD या पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हो, राइट? और भी ऑप्शन है, PPF, PF, सुकन्या समृद्धि एक्सेट्रा, डिपेंडिंग कि आपका गोल कितना लंबा है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए, बट डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर नहीं चाहिए, हायर रिटर्न्स टारगेट करने हैं और रिस्क ले सकते हो, तो SIP कर सकते हो आप इक्विटी फंड्स में। तो वो चॉइस है, और दोनों चीज साथ में भी जा सकती है। एक्चुअली अभी यही है ना कि इफ वी विल सी, अगर इंडिया का रेशियो देखते हैं तो दैट इज नॉट दैट मच बिग रेशियो जो शेयर मार्केट में या फिर इन सब में डेट फंड में इतना इन्वेस्ट करता है। जनरली सेफ रखने के लिए पैसे वो लोग किस में करेंगे, FDs में डाल देंगे, और थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है वो SIP में डाल देंगे कि चलो यहाँ पे सेव हो रहे हैं हमारे पैसे। पर वही है कि मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि आपको वही रिस्क टेकिंग चीज, कि आपको रिस्क लेना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको सेफ प्ले करना है कि आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, उसको लॉक इन कर दिया 5 ईयर 10 ईयर के लिए। एक्चुअली द क्वेश्चन, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू आई गेस फिक्स डिपॉजिट या SIP, कि आपको कितने पीरियड के लिए वो चीज करनी चाहिए, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वो वही है। Okay, so let's move to the next question. What advice will you give to individuals who are looking to take control of their finance and achieve their financial goals? जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में आपने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया, बट लास्ट फाइनल तो थिंग। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला चीज ये हुआ कि सबसे पहले आपको अपना कैश फ्लो पता होना चाहिए। क्रिएट अ एक्सपेंस शीट कि महीने का क्या खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद आप उस कैश फ्लो से करंट आपने कितना कितना कर लिया है इन्वेस्टमेंट, वो निकालो। एंड देन उसमें से देखो कि अब मेरा गोल क्या है। नेक्स्ट इज गोल प्लानिंग, राइट? गोल प्लान करके एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर ये सब आप नहीं कर पाते, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जॉब और इतना एफर्ट नहीं मारना है, तो एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग। कुछ भी करो, सेव करना चालू करो कि महीने का मुझे 5 या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, उतना सेव करना है। सेविंग कैन बी एनीवेयर। सेविंग कैन बी बैंक में FD करा सकते हो, RD करा लो, SIP करा लो, आप स्टॉक्स में डालना चाहो इक्विटी SIP होती है। बट मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ डिसिप्लिन कि मुझे हर महीने इतना पैसा सेव या इन्वेस्ट करना ही है। तो इसका एक जनरल 50-30-20 रूल है कि व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब 50% शुड बी योर एक्सपेंसेस, 20% should be your 30% should be your savings and 20% should be your investments. But as your salary grows, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, जैसे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मेट्रो में रह रहे हो, 50,000 रुपए आपका आराम से खर्चा होगा, 30,000 रुपए आप सेविंग कर रहे हो और 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे ही आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख हो गई, आपका जो खर्चा है वो 50 का 60 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा। सेविंग 30,000 जो आप कर रहे हो आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड पूरा हो चुका होगा। अब आपके पास 35,000 बफर पड़े, सो आपका जो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है दैट कैन इंक्रीज टू 40 और 50 इमीडिएटली, राइट? क्योंकि आपके खर्चे उस रेशियो में नहीं बढ़ते हैं जिस रेशियो में आपका जितनी सैलरी बढ़ रही है उस रेशियो में खर्चे नहीं बढ़ेंगे, इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल रिसेंटली मैंने मतलब आई थिंक आज ही डाला एक रील, स्टेप अप SIP। सो एवरी ईयर जब आपका सैलरी बढ़ता है और जब भी आपका खर्चा कम होता है, कि आप फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में रहते थे, छोटे टाउन में, या घर पे शिफ्ट हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, उस केस में आपको अपना इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली बढ़ाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना पैसा खर्च हो जाएगा। वो तो सही है, वो तो फैक्ट है कि आप लोग को बहुत, एंड रियली थैंक्स, आपने इतनी अच्छी से बाइफरकेट किया कि दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज टू ऑल आवर मेंबर्स, कि हमें किस तरीके से कैसे बाइफरकेट करना चाहिए पैसे, एज वेल कि हमें एक्सेल में रखना चाहिए। आई डोंट नो कि कोई एक्सेल अभी भी मेंटेन करता है, बनाता है, बिकॉज हम भी अभी वो ट्रेडिशनल फॉर्म में रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स लिखते हैं, बुक में नोटबुक बना के रखते हैं, डेली एक्सपेंसेस उसमें लिखते हैं, और वो एक्सपेंसेस घर के बेसिकली एक्सपेंस होते हैं। पर वी नेवर पुट दैट थिंग कि हमें कितनी सैलरी मिलती है, हम वो सैलरी को किस तरीके से यूज करते हैं। जस्ट ऐसे आते, जहाँ जहाँ देना है वहां दे देते हैं, अभी अकाउंट में लमसम अमाउंट दिख रहा है तो लेट्स गो फॉर अ ट्रिप, क्योंकि आजकल सब में क्या होगा कि ट्रिप्स चलती है, ट्रिप्स पे जाना है, ट्रिप्स पे जाना है। सो इट्स लाइक कि फिर बाद में कभी ऐसे होते हो, हमारा अकाउंट, हमारा जो कॉर्पस इतने टाइम का था वो ट्रिप में पूरा यूज हो गया, अब वी डोंट हैव मनी। तो दिस इज द थंब रूल ऑफ फाइनेंस, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेव करने, मतलब सबके लिए आई गेस।
कवि Okay. सुधांशु, आई थिंक कवि सुधांशु सिंह करके हैं जिन्होंने कुछ हेलो राहुल सर, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए बिल्कुल। Okay. इन द मीन Yeah. टाइम वो पूछ रहे हैं, तब तक मैं एक चीज और बताता हूँ कि ये Hmm. जो है प्लानिंग, हम लोग लिखते हैं कि यार पेपर से लिख लिया, सॉरी पेपर पेन पे लिख लिया, एक्सेल मेंटेन नहीं करा। इम्पोर्टेंट ये है कि नोट्स Hmm. करना, एफर्ट मारना, खुद के अच्छा. फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो एफर्ट आपको Hmm. मारना पड़ता है। अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और नहीं मारेगा, तो Yeah. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, वो तो हर चीज, अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करोगे तो कोई आपका बैकबोन बन के खड़ा तो रहेगा, फिर कब तक कोई आपको ग्रूम करता रहेगा हर चीज में। एट द एंड तो यही होगा कि आपको ही आपको खुद को ग्रूम करना है। सो आई टोटली अग्री विद दैट। सो योर या गाइस, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैब एंड जीआर फिनवाइजर, आप लोग को कुछ भी पूछना है राहुल सर को, यू आर फ्री टू आस्क। लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 to 5 minutes if we have any questions. Sure. And in the meantime, I'll just say keep following GR Finvisors and financially aware Bharat, so that you keep getting new updates. And हम लोग रील्स बनाते Yeah. हैं, we don't get paid for it, but at least अच्छा लगता है कि Hmm. कभी किसी का फायदा होता है। सो आप रील्स देखें तो जरूर कमेंट, लाइक एक्सेट्रा कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, सो दैट इट हेल्प्स अस इम्प्रूव। Yeah, exactly. मतलब over here also why we started this. If I tell you, so it's not like that कि हमें. I have just asked a question. Please take Hitesh. I guess we have cleared your doubt, Hitesh. Can you please write it again? Okay, Hitesh का मुझे मिल नहीं रहा. Hitesh, it would be good अगर आप एक बार फिर से आपका क्वेश्चन पूछ लें. तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि वाई वी स्टार्टेड विद फाइनेंशियली अवेयर भारत, जस्ट कि हमने देखा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कि करेक्ट। रोज नए नए गवर्नमेंट के नॉर्म्स निकलते हैं, किसी इसके नॉर्म्स, उसके नॉर्म्स, बैंक के नॉर्म्स, इतनी सारी चीजें निकलती हैं, पर लोगों तक वो चीजें पता ही नहीं है। अगर अभी भी आप किसी को बोलते तो दे विल बी लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ 60 सेकेंड्स, बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम इतना बूम हो रहा है, इतना इंस्टाग्राम चल रहा है कि जस्ट 60 सेकेंड्स में उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। एंड इट्स नॉट अबाउट अस ओनली, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल। कितने सारे यहाँ पे क्रिएटर्स है जो ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या एब्सोल्युटली। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो सबकी और करो अपनी। देयर आर ट्रू ट्रू ट्रू। इन्फ्लुएंसर्स हु विल प्रोबेबली गलत एडवाइस भी देंगे, सब चीज करेंगे। आपको अपना, यू हैव टू बी योर ओन। जैसे एक बहुत अच्छा लीगल एडवाइजर है कि आप अपना वकील खुद बनिए। तो अपने एडवाइजर आप खुद बनिए। आप भले ही फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं भी बहुत क्लाइंट्स का मैनेज करता हूँ, बट मैं उनको भी बोलता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो समझो कि इसमें क्यों डालना है, कैसे डालना है, तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, एक्सेट्रा। राज ने बोला ओके विच म्यूचुअल एक्चुअली फंड इज गुड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, इट डिपेंड्स राइट ऑन योर गोल। अगर आपका गोल है 1-2 साल का, आप लिक्विड फंड में डाल सकते हो। अगर आपका गोल है 3 से 5 साल का, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो। उससे लंबा है और आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में फिर डिफरेंट कैटेगरीज, अगर बहुत हाई रिस्क टेकर ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकते हो। तो इट इज अ चॉइस, यू हैव टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैं जनरली बोलूंगा कि एक फंड में कभी भी नहीं डालना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, डिफरेंट टाइम होराइजन, लेडरिंग कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं हम लोग, उसको डिसाइड करके हाँ, उसमें डिवाइड करके डालना चाहिए। रिसेंटली हमने भी लेटरिंग के इस कंसेप्ट के ऊपर ही रील बनाई थी, बिकॉज इट वाज आल्सो न्यू कि लोगों को पता नहीं है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे फंड्स को कैसे डाल सकते हैं। तो फॉर दैट ओनली। तो आई होप राहुल आपका डाउट क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क। ओके। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? या आई थिंक नहीं है। आई थिंक कोई लिख रहा था, बट लेट्स वेट फॉर 2 more minutes। अगर आपके कोई या भी या सवाल है प्लीज पूछिए। एंड यू कैन बोथ ऑफ अस, अगर आपको चाहिए वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग पर्सनली हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, बिल्कुल। नॉलेज पर मिलेगा भारत को। हाँ, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा। रिसेंटली आई या स्टार्टेड मेकिंग सम रील्स ऑन द कॉमन स्कैम्स। सो आपको बहुत ध्यान या रखना चाहिए, आजकल डिजिटल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, डिलीवरी स्कैम्स हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं।
तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आरबीआई, बैंक सब लोग बता रहे हैं। So please be careful, and thank you Hitesh ji for your good words. And yes, all of you, thanks for being a wonderful audience. And yeah, keep following both the channels. अगर आपको कुछ doubt आए, you can just drop us a message on the respective channel, and we will be happy to help. Okay, fine. So, Rahul, I don't have any words to say at present, but yeah, I will thank you a lot as you are a part of our channel. और आपने इतनी अच्छी तरीके से इतना bifurcate करके आपने ये चीज को explain किया. I hope हमारे members को they are very clear with all this thing. So thank you so much. Hope to see you again. And yes, guys, अगर आपको अच्छा लगा ये live तो please let us know so that हम ऐसे और lives बनाते रहे आपके लिए और आपके सारे doubts यहाँ पे clear हो जाए. Thank you, Mohini, for having me, and thanks again everyone for being Okay. such a wonderful audience. Keep growing, keep learning. Thank you, Lokesh, for the good suggestion. Everybody, सबके लिए, and thanks a lot again. Have a great day and a great week ahead. Okay, Bye bye. chalo, bye. Have a good day. Bye bye. Thank you. Yeah, bye.